Hello and welcome again to our series The Prospective. I'm your host Filza Jabin, and today we have here with us Seema Nagar. Welcome, Seema. Thank you, Filza. So let me introduce you all to Seema. Seema Nagar is a career advisor, Green Belt certified from UCLA Extension. Seema Nagar is a visionary educator with 30 years plus of experience in career counseling, IELTS, and soft skills training. Her expertise helps students and professionals navigate their path with confidence. Seema Nagar has trained Japanese experts in English language and Munjal Showa and Maruti Suzuki, conducted trainings for Spanish professionals communications for CEOs in the food and beverage industries, soft skills training for employees of Adani Group, Subros, and GPS Renewable. She is also a freelance trainer with Times of India conducting workshops in top schools. Welcome again, Seema. Thank you for being here at my show. I'm really glad that you are here. So, tell us more about yourself and your journey and the work you're doing. Thank you, Filza. Thank you for the generous introduction. And okay, my journey. So it's almost 30 years I've been into education. And I started my career as English lecturer in Sardar Vallabhbhai Patel College, Bombay. And before that, I was teaching in Jawahar Navodaya Vidyalaya too. And slowly and steadily went to soft skills and then corporates. And so something is calling, no? So I really wanted to find out that what exactly is missing in my journey. So I was in and around with students, always in and around with students. So I found out that everybody, when they come to 10th, 11th class, they have to find their career. And that career which they find is not their own decision. That is either forced by parents, relatives, or themselves. Like maybe science is difficult, or maybe I want to do this. So I just wanted that they should find their own way with their own decision without blaming anybody later in life. So I did my career counseling from UCL Extension, and from there I started my own company, Global Edu Careers. This is in short I can give you. You are doing some amazing work. I really know about that. But uh, tell us more about this कि कैसे old ways of picking career is failing our children in this era जो कि इतना fast है. How is it affecting their life? Very nice question, Filza. Now, see here. Old ways, if I talk about our times, no, when we were in 10, so there were few careers. Either you go to engineering, या आप डॉक्टर बन जाओ, या सीए बन जाओ, या आप सीएफए ले लो. So these were only few careers parents knew and even we were aware of. But now, what has happened is there are plethora of careers. आप के पास में डिजाइनिंग है, आप product designing, which IITs have introduced. Then you have, apart from engineering, you have sustainability, careers in sustainability, renewable energies, AI, design, robotics, and lot of careers. But difference कहाँ जाता है? Parents, they think they go by the old method only. मार्क्स आ गए हैं अच्छे तो वी विल टेक साइंस, मैथ्स में अच्छे आ गए हैं देन विल गो फॉर साइंस. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. सो यहाँ पे हमारा एक क्लैश आ जाता है कि आप ओल्ड वे फॉलो कर रहे हो और यहाँ पे हमारे पास इतने सारे करियर्स हैं, बहुत सारे करियर्स हैं. तो कैसे चूज किया जाए, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, ये एक बिग हिट है. बिल्कुल बिल्कुल. बिकॉज मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है कि कहीं ना कहीं वो चेंज लाने में एज अ पेरेंट मुझे भी बहुत दिक्कतें आती हैं. आई एम स्केर्ड. पता हाँ, नहीं क्या होगा, वेदर आई एम टेकिंग अ राइट डिसीजन और नॉट फॉर माई चाइल्ड. तो जो वो ये, हाँ, वो इसीलिए क्योंकि आप इनेट एबिलिटी नहीं समझेंगे हम बच्चे की. हम वो ओल्ड वे से जा रहे हैं. अच्छे मार्क्स, दिस इज गुड.
सो कहीं ना कहीं तो ये इफेक्ट करता ही है, राइट? सो व्हाट हैपेंस टू अ पर्सनस मेंटल हेल्थ व्हेन दे आर फोर्स्ड टू अ करियर विच दे हैव टू डू इट? See, अगर आप, if you are not understanding the aptitude of a child, what is his natural strength? So what happens? Constantly, despite of hard work, he'll not be able to do it. Struggle करेगा, कहीं ना कहीं यस. तो struggle करेगा. Second, he'll start self-doubting himself. अपने आप को self doubt करना शुरू कर देगा. Fine. And then over a period of time, he'll find stressed out, burnout, and lack of motivation. I'll give you one example here. I had a student. So, as you said, I used to take English classes also. So, I had a student. He used to come to me in seventh, eighth, ninth for English. So, he was not able to make eye contact. Eye contact नहीं मिल पाता है. कोई बात नहीं, ठीक है, दैट्स फाइन, ओके. बट वट एवर आई यूज टू से इन द क्लास, वो उसे एकदम याद हो जाता, पूरा याद होता था. मीन्स आई कैन नॉट मेक अ मिस्टेक ऑफ अ एन एंड द ऑल्सो. मैं वो मिस्टेक भी नहीं कर सकती थी बिकॉज वो याद करता था. तो आई वाज टू बी लाइक नो वेरी कॉन्शियस, दो वी डोंट मेक मिस्टेक्स, बट फिर भी बहुत. हाँ, बिल्कुल. बट व्हेन ही केम टू 9th class and 10th class, he was put in a slow learners category. Bas Oh. he started losing his, उसका कॉन्फिडेंस एकदम एकदम ही जाने शुरू. पेरेंट्स वर वरीड. दे अप्रोच्ड मी. हमने टेस्ट किया, हमने साइको असेसमेंट किया. IQ level was very high. Then we I asked them to get the test done from a hospital. CBSE के अंडर कुछ एक हॉस्पिटल्स हैं जो CBSE लेती है, जिनके टेस्ट CBSE अप्रूव करते. So parents went there. And we found out that he was not able to do rote learning. उसको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी होती थी, बट रोट लर्निंग वो नहीं करता. Okay. अब क्या करें? He was losing his confidence. He did not want to go to school also. नहीं जाना मुझे, नहीं जाना, नहीं जाना. Then for the first time I asked parents कि आप इन्हें स्कूल से निकाल के we will have one-on-one tuitions. And by God's grace we got it also. And he enrolled in a school. CBSE is very friendly in this, बहुत friendly है. So उसके languages हटा दिए. Now he enrolled in school. We enrolled him in a school, and he is taking one. You'll not believe, Filza, he did amazing. Physics, chemistry, maths. बहुत अच्छा करता था. रात को आता था, मैम इंग्लिश पढ़ा दोगे 9 बजे. So उसकी सिंसियरिटी देख के मुझे लगता था हाँ बिल्कुल मैं पढ़ा दूंगी, कोई बात नहीं. And after 2 years, so he was not a people person. वो Okay. people person है. He wanted to do everything alone. जो मुझे assessment में पता चला. So यहाँ पे 2 साल बाद he cracked JEE, IIT Delhi, रुड़की, JEE, lot of NITs उसने क्रैक किए. SATs में उसका आया. Indian Institute of Research and Sciences, कोलकाता पूना दोनों में उसने क्रैक किया. एंड अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अब हम उसे डालें तो डालें. Okay. गॉट इट. सो दिस इज हाउ वी मेक क्राफ्टेड जर्नी. अब अगर उसे फिर से हम IIT में भेज देते, he would have started losing his confidence because he was not a people. His orientation style was not people. Informative था, but उसका people नहीं. Now we sent him to IISR. And from there, second year, he got scholarship. He went to Japan, the research in physics. And fourth year, he went to US, again on scholarship. And now he's teaching in US. This is how, if we understand the natural ability of a student, where he excels, craft, the road is blue. दिस इज़ अमेजिंग. बहुत बहुत शुक्रिया ये शेयर करने के लिए. आई होप पेरेंट्स आर लिसनिंग टू दिस. बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है सीमा. आई मस्ट अग्री टू दिस कि अगर हम बच्चों के नेचुरल टैलेंट को, नेचुरल जो उसका जो गिफ्ट है फ्रॉम गॉड, उसको समझें, देन वी कैन हेल्प देम, देन वी कैन गाइड देम. बट कैसे एज अ पेरेंट हम समझें कि ये एक टेम्प्रोरी फेज है या एक परमानेंट चॉइस है?
इसको समझना बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए. सो हाउ कैन वी हेल्प देयर? नाउ आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ. सो somebody gave स्टूडेंट्स को एक वो दिया गया ऐसे लिखने के लिए that what do you want to become in. So half of the class wrote influence. ओके. कहाँ से आया ये चीज आई हमारी एक्सपोजर से. ओके. डिड यू गेट इट? एक्साइटमेंट से. यस. कि एक्सपोजर एक्साइटमेंट, ओ दे अर्न लॉट ऑफ मनी. यूट्यूबर्स दे अर्न लॉट ऑफ मनी. गेमिंग, ओ बहुत पैसा है. सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल से मैम जिसमें ज्यादा पैसा हो ना वो बताइए फिर. नो, दैट्स नॉट द राइट. I always tell them, if you are good at what you are doing, money will chase. या. Okay? So you have to see the temporary interest that will come from excitement and exposure. यस. Okay? And real talent itself, I'll make it in three ways. What the child is actively faster than others. कौन सी चीज वो बहुत जल्दी फास्ट कर रहा है, किस चीज के लिए आपको बार बार उसको बोलना नहीं पड़ रहा है. मतलब ही वॉलंटरली ही इज बीइंग डूइंग इट एंड कमिंग बैक टू इट. आई गिव यू वन एग्जांपल हियर. लेट्स से ड्राइंग है, बहुत सारे बच्चे करते हैं ड्राइंग को, बहुत बच्चे कर बिल्कुल. लेते हैं. बट अगर बच्चे का आप देखोगे कि ही इज गेटिंग टू द माइन्यूट डिटेल्स ऑफ दैट, माइन्यूट डिटेल्स, और अपने आप जाता है, अपने आप करता है एंड कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव्स हिमसेल्फ, दैट इज हिज रियल. वो उसका है. Amazing. I'm sure that's going to help. So, as a parent, क्या हमें first step लेना चाहिए to help our children explore? जैसा कि आपने कहा है कि exposure एक बड़ा part है Mm-hmm. in their career choice. So, what can I do? See, you will not instruct them, you will Okay. observe. Normally पेरेंट्स क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस हो जाती हैं, कंट्रोल हो जाता है. अरे ड्राइंग में जाओ, इस क्लास में जाओ, इंग्लिश में जाओ, या कथक में, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स. एंड दैट कंट्रोल बिकम्स दैट केयर बिकम्स कंट्रोल. केयर जो होती है वो कंट्रोल में शिफ्ट हो जाती है. तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है कि आपके बच्चे को क्या चीज एनर्जी देती है. ऑब्जर्व कर रहे हो आप, क्या चीज एनर्जी दे रही है. लेट्स से कोडिंग कर रहा है बच्चा एंड इज वेरी गुड एट, ही कैन सिट फॉर आवर्स एंड आवर्स टू डू दैट कोडिंग, because every child is unique. Every child is unique. Let's say I always quote this example. मेरे घर में लाइट चली जाएगी तो मैं सबसे पहले नेबर्स के जाऊंगी या पूछूंगी आपकी लाइट है कि नहीं है. But my daughter, she did engineering, she'll try to find out where the fault lies. Both are unique. हम दोनों यूनिक है. That's why I say first observe them. Second, what is naturally innate ability, क्या है उनके, and how they have been solving the problems, किस तरीके से solve कर रहे हैं problems. Okay. Right? Then comes the professional aspect. Then we people are there to help them with the psychometric assessment. So here also we have 4 to 5 parameters. One is called orientation style. Now how orientation style? Like एक बच्चा information based है, एक people based है. Like, I get energy amongst people, but let me somebody else who is into research or something, he gets energy taking information. One might get energy with teamwork. So everybody is different. So we try to find out कि आपकी आपका ओरिएंटेशन स्टाइल क्या है, हाउ यू बीन ड्रिवन बाय. तो इसमें एक चीज और है, हो सकता है ओरिएंटेशन स्टाइल हो बच्चे का, बट बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट दैट इज नॉट एबल टू कम आउट. ये भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है जो हमें लेटर इन लाइफ पता चलती है. बहुत सारे लोग आते हैं, अरे हम पहले तो बोल भी नहीं पाते थे, नाउ वी आर डूइंग वेरी वेल इन लाइफ, जो बोल के ही अच्छा लगता है. सो नाउ यू आर एबल टू गेट योर इनेट एबिलिटीज. देन सेकंड कम्स दैट एप्टीट्यूड, कि आपका एप्टीट्यूड क्या है. आप क्रिएटिव हो,
आप वर्बल हो, बहुत अच्छा बोल सकते हो, यू आर एबल टू कम्युनिकेट योरसेल्फ इन फ्यू वर्ड्स, और क्या कहते हैं, आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कैसी है. सो एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन personality we take only few factors. Personality keeps on changing, but yes, these things are very important. So Okay. for career, it should not be assumption based. If we get that. It should be with lot of evidence or psychometrical assessment. Yes, yes, So yes, here I would suggest parents को कि भाई आप जाइए, career counselors हैं, उनकी मदद लीजिए. It's about your child's life. And when you are helping them now, you're helping them for their rest of life. So yeah, yeah. this is must for each and every one who's listening here, कि आपको अगर अपने बच्चे की मदद करनी है तो go and take any professional's help. They are expert in this area. They are going to definitely support you. राइट. That's बट आजकल यहाँ पर मैंने देखा है और बहुत ही आम तौर से ये होता चला जा रहा है दैट आई विल आस्क गूगल, आई विल आस्क AI एंड आई विल टेक द हेल्प फ्रॉम ChatGPT एंड ऑल दोज थिंग्स. वो मुझे ज़्यादा बेहतर बता देगा बिकॉज दे नो मी. आई एम कॉन्स्टेंटली चैटिंग, दे नो मी बेटर, सो दे आर गोइंग टू चूज इट फॉर मी true. एंड आई एम गोइंग टू फॉलो दैट. है ना. ये Mm. बहुत ही कॉमन मैंने देखा है. तो Mm-hmm. इसके बारे में आई वॉन्ट यू टू टॉक लिटिल बिट अबाउट टू आवर व्यूअर्स एंड पेरेंट्स कि क्या ये डेंजरस हो सकता है और किस हद तक डेंजरस हो सकता है हमारे बच्चों के लिए. Yeah. So, देखिए, following trends blindly can be risky. Now, here, uh, let's say, अब आजकल AI, robotics और ये सारा it's in vogue, no? That यस. and that is like 10 years down the line, people say like, इनमें ही करियर है. अब क्या होता है कि आपने AI से तो ले लिया. What I do is, मैं पहले बच्चे से बात करता हूँ. I ओके. understand strengths and weaknesses. I'll ask lot of questions again and again, and then I make my own report. Then I've talked with parents to understand the nurturing style of a child. ये हो सकता है पेरेंट बोले ये क्रिएटिव तो थी, बहुत अच्छा लिखती थी, पोम्स वगैरह बहुत अच्छा लिखती थी, बट नाउ शी इज नॉट डूइंग इट बाय बिकॉज ऑफ academic pressure or something. So I try to find out. I talk with parents. फादर से अलग बात करती हूँ, मदर से अलग बात करती हूँ, एंड आई मेक माई रिपोर्ट. देन आई गिव असेसमेंट. अब जब असेसमेंट देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए, बच्चा जो है वो आउटर फैक्टर से बहुत ज्यादा ड्रिवन है, बहुत ज्यादा. लेट्स से आपको आपने पढ़ लिया, आप डोंट नो क्या क्वेश्चंस आपने डाले हैं, बट आपने पढ़ लिया कि इसमें करियर बहुत अच्छा है, या इसमें करियर बहुत अच्छा है, इसमें करियर बहुत अच्छा है, एंड यू गॉट द रिपोर्ट, आई एम गोइंग टू डू दिस, यही मुझे करना. बट जब मैंने असेसमेंट दिया तो यहाँ पे मुझे समझ आया कि आपने करियर रोबोटिक्स ले लिया, बट यहाँ पे आपकी परसेप्चुअल थिंकिंग लो है, लॉजिकल थिंकिंग लो है, एंड न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छी नहीं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाउ गॉट कैन अ इट. पर्सन विल गेट इनटू रोबोटिक्स रोबोटिक्स. और नेवर. वही होगा उसका स्ट्रेस्ड आउट, he'll start doubting himself कि ये मैं अच्छा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ. दैट विल लीड टू कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस लो होता जाए. तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड समटाइम्स बच्चे क्या करते हैं, डॉज करते हैं. उनको लगता है साइंस मुश्किल हो जाएगी तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा. तो दे राइट आंसर्स लाइक नो, घुमा देते हैं. बट स्मार्ट तो है ही, देखो दिस इज दे आर डिफरेंट स्मार्ट. जनरेशन, यस. स्मार्ट. सो वो घुमा देते हैं. सो हियर वन, आई स्पीक विद देम. तब तो मेरा अपनी रिपोर्ट और इधर दूसरी रिपोर्ट दोनों मिला के जब मैं बनाती हूँ, देन आई फाइंड आउट कि ऐसे एक बच्चे के साथ रुद्रपुर में हुआ था. सो ही रोट ऑल मैथ्स वाले इंटरेस्ट के डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं कुछ. तो आई सेड क्या इसकी एब्स्ट्रैक्ट भी बहुत अच्छी है, परसेप्चुअल भी बहुत अच्छी है, देन हाउ कम लाइक नो लॉजिकल बहुत अच्छी आ रही है इसकी एप्टीट्यूड. देन हाउ कम, ही सेड मैम सारे फ्रेंड्स कह रहे थे कि साइंस में ना 2 साल फंस जाओगे, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता ओके. है. आई आस्क, मैंने बोला बेटा एक बात बता, हो सकता है जिसने आपको बोला हो उसका एप्टीट्यूड ना हो,
उसका एप्टीट्यूड ना हो या उसने सफर किया हो, बट आपका एप्टीट्यूड तो है। तो यहाँ आई गाइड ऑल्सो, आई गाइड पेरेंट्स टू, एंड आई गाइड स्टूडेंट्स टू, कि आपको, आप क्या गलती कर रहे हो अपनी लाइफ, क्या गलती कर रहे हो दूसरे बाहर देख के। सो दिस इज हाउ वी गो। दैट्स अमेजिंग। बहुत ही सही बोला। दीज किड्स आर वेरी स्मार्ट, हम उनको पकड़ नहीं सकते। दे आर वेरी स्मार्ट, बट यस, विथ इंटेंशन कि नहीं, इनकी मदद करनी है, इनका फुल पोटेंशियल बाहर लाना है, विच यू आर डूइंग। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर द वर्क यू आर डूइंग, सीमा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम कभी ना कभी रॉन्ग करियर की तरफ हमारा चॉइस हो जाता है। जैसे मेरे मेरे अपनी पर्सनल स्टोरी मैं बताऊं, जैसे मेरे बच्चे ने मैथ्स चूज़ कर लिया, दैट आई वांट जेई। Then again, after getting his result and all, he himself realized कि नहीं, मुझे जेई नहीं चाहिए, आई वॉन्ट साइंस, आई वॉन्ट बायोलॉजी, आई लव बायोलॉजी। सो हमने एप्लीकेशन दिया, देन वी चेंज्ड, राइट। सो कैसे एक पेरेंट्स को और एक बच्चे को पता चले दैट आई हैव मेड अ रॉन्ग चॉइस ऑन टाइम? ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट बात है ना, कि वक्त रहते हमको पता चलना चाहिए कि नहीं, हमने एक गलत डिसीजन ले लिया, आई मस्ट गो फॉर समथिंग एल्स। सो हाउ कैन वी कम टू नो अबाउट दिस? So, अभी डे बिफोर यस्टरडे आई वाज डूइंग, किसी की काउंसलिंग कर रहे थे मैं। सो शी सेड, मैम मैं बहुत पढ़ती हूँ, पर ना मेरा मन ही नहीं लगता और मेरे मार्क्स भी नहीं आते, बिल्कुल मार्क्स नहीं आते। तो ऐसे ठीक है, कोई बात नहीं, दैट्स फाइन। ऐसे कि मेरा ना मन ही नहीं करता है करने का, मैं आई जस्ट स्टार्ट टू कीप ऑन डिलेइंग। फर्स्ट थिंग इज, व्हाट विल हैपन टू यू इज कांस्टेंट प्रोक्रेस्टिनेशन। आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते जाओगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। लाइक मैथ्स नहीं अच्छा लग रहा है, हाँ अभी कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, परसों कर लेंगे। यू विल बी स्टार्टिंग बट आउट ऑफ फियर एंड प्रेशर। ठीक, पढ़ रहे हो बट फियर, दैट इज यू आर हार्मिंग योर बॉडी ऑल्सो ना, हर चीज को परेशान कर रहे हो। देन यू विल फाइंड दैट देयर इज अ नोटिसेबल ड्रॉप इन कॉन्फिडेंस। जाना ही नहीं चाहेगा बच्चा, मेरे से हो नहीं रहा, सब लोग हैं। बस आजकल तो देखो ना, बच्चे चलते ही हैं, लाइक्स डिसलाइक्स, ये अच्छा हुआ ये नहीं हुआ, तो बहुत जल्दी, मतलब लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विल कम, मैम वो जज करेगा ये, बेटा जज होता क्या है? तो सो डियर, यहाँ पे क्या होगा, देयर बी अ नोटिसेबल फॉल इन आपका कॉन्फिडेंस में, एंड देन देयर बी लॉस ऑफ क्यूरियोसिटी एंड एंथुजियाज्म टू। मतलब आप, मन ही नहीं करेगा आपको पढ़ने को, एंड समथिंग यू लाइक यू ट्राई टू फाइंड आउट, अरे इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, कैसे होगा। सो दिस इज द रीजन, जब मेरा साइकोमेट्रिक असेसमेंट की रिपोर्ट आती है, देन आई कॉल पेरेंट्स। खाली मैं पेरेंट्स से बात करती हूँ, दो दो ढाई घंटा लग जाता है टू टेल देम विद एविडेंस। बिकॉज हर पेरेंट को लगता है नहीं, मेरा बच्चा कर लेगा, बिकॉज मैम उसके मार्क्स बहुत अच्छे आए थे टेंथ में, उसके मार्क्स मैथ्स में 99 थे, 98 थे। बट मार्क्स आर नॉट योर मार्क्स, इज ओनली व्हाट विल गिव यू योर एग्जाम आउटपुट, एग्जैक्टली। एग्जाम आउटपुट। बट आपका इनिएट एबिलिटी क्या है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रीजन होता है, फिर एक कॉल आना शुरू हो जाए, सो बच्चा फिर उस चीज को एंजॉय ही नहीं करता है, उनको मन ही नहीं करता है करने के लिए। एंड देन स्लोली एंड स्टडीली, पहले डर के पढ़ भी रहेगा, देन he'll become the careless. This is सो ये बहुत ही कॉमन है बच्चों के अंदर कि हमने एक रॉन्ग करियर चूज़ कर लिया, hmm. राइट। बहुत ही कॉमन है। सो टेल आवर व्यूअर्स अबाउट द हिडन कॉस्ट ऑफ इट। क्या सफ़र करते हैं बच्चे? Now Filza, see here again, I'll take example because मेरे इतने सारे students हैं, तो I'll with example. एक one of my student, so he was in 10th, very sharp student, बहुत sharp था। So I asked parents कि इसकी career counseling करा लीजिए, तो they refused, so I never insist on कि ठीक है, मतलब उन्होंने पता नहीं कहाँ से, AI से कहाँ से किया, I don't know, and that said कि आप साइंस के लिए you're perfect. ओके। It is not 15 minutes report, कभी नहीं बन सकती है, it is a long process। बच्चे ने साइंस ले ली, 11 12 आई सेड आउट ऑफ प्रेशर, आउट ऑफ फियर, किसी तरह उसने मैनेज किया, लॉट ऑफ
tuitions, coachings and all. Got it? So किसी तरह से. Then he took JEE का exam दिया, was not able to get through. He took in a private institute. वहाँ पे first year, second year, he told his parents, no, I want to drop it. I cannot do it. Okay. मुझे करना ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता. अच्छा, it was getting like उसको happiness चली गई थी. हाय, मतलब पेरेंट्स वर लाइक कि यार हंसता ही नहीं है मेरा बच्चा बिल्कुल. तो उन्होंने फिर निकाल लिया उसको, बच्चे को. ही वॉज वेरी शार्प इज कमिंग टू मी. एंड निकालने के बाद में देन अगेन ही वेंट टू बीकॉम. बीकॉम में किया उसने, जाके एनरोल किया. अब बीकॉम हो गया, उसके बाद दे अप्रोच मी. सो कि अब हम क्या करना है. नाउ ही वांट्स टू डू एमए इन इंग्लिश. देखो कहाँ से चला था करियर, कहाँ पहुंच गया. आई आस्क्ड हिम कि क्या बेटा क्यों. मैम मुझे समझ नहीं आ रहा, और मेरे फ्रेंड्स सब आगे भी निकल गए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा. आई डू इन दिस. सो ही वाज ट्राइंग टू लाइक एस्केप. छोड़ना चाह रहा. सो व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ दिस? टाइम, Yeah. एनर्जी, इमोशनली, पेरेंट्स एंड बच्चे के लिए. एंड ऑफ कोर्स मनी तो है इम्पोर्टेंट. बिल्कुल. एवरीथिंग दे लॉस्ट. और उसके बाद भी बच्चा सेटल. If a student is very clear about कि मुझे क्या करना है, and he has that innate ability for that, he should go for that. But in case अगर आपको नहीं है clarity, अगर आपको लगता है कि कहीं कहीं कुछ मतलब है, गड़बड़ है, then you should always see a therapist. Yes. It will save lots of hidden cost. वो बहुत ज्यादा सेव कर इस चीज से. So बिल्कुल. initially, if you're paying something, that is going to help you all. Yes, definitely. Thank you for your time and wisdom, Seema. I'm really grateful. जितना सब कुछ आपने यहाँ पर बताया, it is very important. But before going, I'll keep the time in mind. Before going, tell our viewers what is your free gift and how can they reach out to you if they want to do any consultation. Right. So one thing I just want to tell everyone that every child is unique. Okay? Every child is unique. So do not force them to take this stream or that stream. Make their success a journey, not a struggle, Yes. which is very important. Okay? Marks are not your determinant factors. No, not at all. Here only aptitude works. खाली aptitude ही काम करता है. And I'll give you my Instagram. I have few resources, and I'll give you my Instagram ID plus LinkedIn and phone number as well. So parents can always connect with me. And in case they want free guidance for 15 minutes, they can always connect with me. I'm happy to help them out because for me, students are very, very important. बहुत important है. So anytime you can take an appointment and 15 minutes, I'll always guide you. A free session. Thank you so much, Seema. So I will be putting all the details in the description box. So go and check out there. Seema is offering 15 minutes free one-on-one consultation. Don't miss this opportunity. She is doing some amazing work, and she's definitely going to help your child forward. So with that, we have come to an end. Seema, thank you so much. I'm really grateful for your time. I'm really grateful कि आप हमारे इस platform पे आए, and we wish you best of luck in supporting our children and parents. Thank you, Filza. Thank you for inviting me, and thank you and all the best for your prospective series. Okay, with that, we are ending this series for today, and we will again meet next week. Every Sunday, we are going on air. This prospective series is coming on YouTube on my channel. If you like my work, definitely let me know in the comment box and what improvement you want from us. We'll definitely work on it. Bye bye and take care.